السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام خالد ہے اور میں بہت چھوٹا تھا جب میری ماں فوت ہو گئی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد میرے بابا مجھے یہاں لائے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جہاں میرے بابا کام کرتے تھے، وہ مالی تھے، اور میں 15 سال کی عمر سے یہاں رہ رہا تھا۔ اپنے بابا کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا۔ ان کے گزر جانے کے بعد بھی میں یہیں رہ گیا اور بنگلے کا خاص مالی بن گیا تھا۔ اب میری عمر اتنی ہو چکی تھی کہ میرے بال سفید ہو گئے تھے۔ میری 4 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا جو اب بھی چھوٹا تھا۔ اسی گاؤں میں میرا چھوٹا سا گھر تھا جہاں میری فیملی رہائش پذیر تھی۔ میں صبح ہوتے ہی بنگلے پر آ جاتا اور شام کے سر پھیلنے کے بعد اپنے گھر چلا جاتا۔ میں نے اس بنگلے میں کبھی کوئی عجیب و غریب بات نہیں دیکھی تھی، مگر مسلسل کچھ وقت سے ایک بات ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ مجھے کچھ عجیب سے چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ چونکہ میں صبح کے 6 بجے یہاں آتا تھا تو اس وقت بنگلے کے مکین سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ دن میں ایک بار سارے بنگلے کو چکر لگاتا تھا۔ یہ مالکن کا حکم تھا جو اس بنگلے کی بڑی تھی۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتی تھی کیونکہ میں بہت پرانا ملازم تھا ان کا۔ ایک روز میں بنگلے کے اوپر والے حصے میں صفائی کے لیے ملازموں کے ساتھ اوپر لے آیا۔ ملازم تو صفائی میں مگن ہو گئے، میں یہاں وہاں نظریں جھکا کر جائزہ لینے لگا۔ اچانک ایک کمرے کا دروازہ زور و شور سے بجنے لگا کہ سارے ملازمین بھی کام چھوڑ کر خوفزدہ دروازے کو دیکھنے لگے۔ مجھے نکالو یہاں سے، یہ آواز اس کمرے سے آ رہی تھی اور ساتھ ہی دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ بھاگو بھوت بھوت! یکدم سب ملازمین میں بھگدڑ مچ گئی اور سارے سر پہ پیر رکھ کر بھاگنے لگے، جبکہ میں وہیں کھڑا اس بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ میرا دل کیا میں دروازہ کھول کر دیکھوں، اس لیے میں دروازے کی طرف بڑھا، مگر یہ کہ اس پر تو بہت پرانا سا مضبوط تالا لگا ہوا تھا۔ میں اسے توڑنے کا سوچ ہی رہا تھا جب مالکن وہاں چلی آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کیسے شور ہے؟ ان کے آنے پر میں پیچھے ہو گیا۔ مالکن، اس کمرے میں بھوت ہے! یہ بڑے زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ کوئی اور آواز بھی آ رہی تھی، وہی آواز تھی جی، ملازم نے بتایا۔ میں غور سے مالکن کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے ساتھ تھی۔ تم لوگ نیچے چلو سب، جلدی جلدی! انہوں نے تیزی سے کہا تو سارے ملازم اسی انتظار میں کھڑے تھے۔ فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ تم کیوں یہاں جم کر کھڑے ہو؟ تم بھی چلو نیچے! انہوں نے مجھے وہاں یوں ہی کھڑا دیکھا تو بولا۔ میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا، میرے پیچھے ہی وہ بھی نیچے آ گئیں۔ اگلے دن مالکن نے سب کو جمع کر کہا، بنگلے کے اوپر والے حصے میں بھوتوں نے بسیرا کر لیا، اب کوئی وہاں نہ جائے۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی، مگر میرا دل جانے کیوں یہ بات نہیں مان رہا تھا کہ وہاں کوئی بھوت ہو سکتا ہے۔ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ عورت کوئی مصیبت کے ساتھ تھی، مگر میں ابھی اس بات کو کنفرم نہیں کر پایا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ سوچ رہا تھا۔ یوں ہی کچھ دن عام روٹین سے گزر گئے، باہر آ گئے تھے اور اب میں نئے پودے لگانے میں مگن تھا۔ نئے پودے لگانے کی وجہ سے بہت کچرا ہو گیا تھا۔ میں نے ملازمین کو بلا کر وہاں صفائی کرنے کو کہا تو وہ تو صفائی کرنے لگے، جبکہ میں پودوں کو دیکھنے لگا۔ جب میرے کانوں میں ان کی آواز پڑی، تمہیں معلوم ہے رات کو مجھے بڑی عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں بنگلے کے اوپر والے حصے سے، جیسے کسی مرد کی خوفناک آواز ہو۔ ایک ملازم دوسرے ملازم سے کہہ رہا تھا، کیا مرد کی آواز؟ لیکن اس دن تو کسی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ دوسرے ملازم نے کہا، ہاں نا، وہی بات تو میں بھی سوچ رہا ہوں۔ مالکن نے صحیح کہا تھا، وہاں بھوتوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ کبھی مرد کی آواز، کبھی عورت کی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ وہ مزید باتیں اس بارے میں کر رہے تھے۔ میں بے ساختہ نگاہ اوپر اٹھائی اور شام سے کھڑے اس بنگلے کو دیکھا۔ اس کے اوپر والے حصے پر میری نظر گئی تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ شاید یہ بات سچ تھی، وہاں بھوتوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ سب کی طرح میں بھی ان باتوں پر یقین کرنے لگا۔ پھر اکثر و بیشتر وہ بھوت کسی نہ کسی ملازم کو
करने लगे थे। और ये भी कुछ दिन का ही असर था, फिर वापस सब नॉर्मल हो गया। फिर बंगले में शादियों का होने लगा। असल में जिस बंगले में माली था वहाँ की मालकिन सब मुलाजमिन की बेटियों की शादी अमीर घरों में अपने खर्चे पर करवाती थी। अभी भी ऐसा ही हुआ था। एक मुलाजमा की बेटी की शादी उन्होंने एक अमीर घर में तय कर दी थी। मेरी बीवी अक्सर कहती थी बंगले की मालकिन क्यों कर किसी गरीब लड़की की शादी इतने बड़े अमीर घराने में कराएगी। इसको तो यकीन ही नहीं आता था। हैरत की बात तो थी मेरे लिए, मगर मालकिन थवाब की नीयत से करती थी, यह इनका कहना था। खैर, जो मुलाजमा थी वो इसकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी थी। मालकिन ने मुलाजमा भी बहुत खुश थी अपनी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो जाने से। मालकिन को तो दुआएं देते नहीं थकती थी, मगर अचानक फिर वो कुछ दिन गुजरने के बाद बंगले से गायब हो गई थी। मुलाजमीन में इसको लेकर ही बात चलती रहती कि यूं अचानक कैसे वो गायब हो गई, क्या वजह हो सकती थी इसके गायब होने की। बंगले में तो हिरास मचा हुआ था। इस बात से फिर कुछ दिन बाद मालूम हुआ वो मालकिन से छुपकर अपनी बेटी से इसके ससुराल मिलने चली गई थी। ये बात भी मुझे मुलाजमिन से ही मालूम हुई थी। फिर बात खुली कि वो इधर उधर घूमने लगी थी। जब कोई मुलाजिम पूछता तो वो कहती बेटी की याद आ रही है, मगर वो इससे मिल नहीं सकती थी। असल में मालकिन ने मना कर रखा था कि वो अपनी बेटी की शादी के बाद इससे मिलने ससुराल नहीं जाना, वरना इनकी बेटी घर बर्बाद हो जाएगा। जिस वजह से वो अभी तक बेटी घर नहीं गई थी। लेकिन शायद औलाद की तड़प ही ऐसी होती है कि वो मजीद न रह सके, और फिर उसी तड़प में उन्होंने बेटी घर बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर वो कब बंगले में वापस नहीं आई थी। इस वजह से अब तो मालकिन ने सख्त असूल बना लिया था कि जो उनका यह असूल मानेगा इसमें ऐसे मुलाजिम की बेटी की वह शादी करवाएंगी, वरना नहीं। और इनका ये असूल ये था कि इनको हर बात मानना होगा जो वो कहेंगी, जिसमें यह बात भी शामिल थी कि कोई भी मुलाजिम बेटी का ससुराल मिलने नहीं जाएगा। उन्होंने बहुत से मुलाजमिन की बेटियों की शादी करवाई थी। कुछ तो अपनी बेटियों से मिलने गए जो वापस कभी नहीं आया, और कुछ इस तड़प में जी रहे थे, हमारे साथ काम कर रहे थे। एक दिन मालकिन के बेटे बहर के मुल्क से आए थे। मालकिन को पौधे बहुत पसंद थे। उन्होंने अपने बेटे से कहकर बहर के मुल्क से पौधे मंगवाए थे और मुझे कहा कि अच्छी तरह से मैं इन पौधों को लगा दूं। मुझे बहुत वक्त लग गया इन पौधों को लगाने में, तकरीबन शाम भी गुजरने वाली थी जब मैं पौधों से फारिग हुआ और घर जाने के लिए तैयार हुआ। मगर मेरे दिमाग में ख्याल आया मालकिन को बताता जाऊं, इसलिए बहर की तरफ बढ़ने के बजाय मैं बंगले के अंदर चला गया। मालकिन के कमरे पर दस्तक दी मैंने, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, इसलिए दरवाज़ा हल्का सा खोलकर जब मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं खाली कमरे को देखकर दरवाज़ा वापस बंद करके पलट आया। जब मैंने मालकिन और उनके बेटे को घर के ऊपर वाले हिस्से की तरफ लौट कर आते देखा, मेरे दिमाग में सवाल आया कि वे क्यों ऊपर गए हैं। वहाँ तो अब कोई नहीं जाता था, मुलाजमों के अलावा हवेली कोई मुकिम भी वहाँ का रुख नहीं करता था। फिर वो लोग क्यों वहाँ गए थे? भूत की मौजूदगी से तो अच्छे डर जाते थे, घबरा जाते थे। फिर क्या इनको डर नहीं लग रहा, जबकि इनका ही कहना था कि वहाँ भूतों का बसेरा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गए नहीं अभी तक अपने घर? मैं वहीं खड़ा सोच रहा था जब मालकिन ने मुझे देखकर कहा, जी मालकिन बस जा रहा था, आपको ये कहने आया था कि पौधे लगा दिए हैं। बस इनमें देर हो गई है, अब जा ही रहा हूँ। मैं इनके कहने पर फौरन वजह बताकर वहाँ से घर आ गया। एक बार मेरी बीवी मुझसे बोली कि हमारी बड़ी बेटी की उम्र हो चुकी है, शादी की है, तुम अपने मालकिन से बात करो, इसकी शादी के लिए हमारी बेटी बड़े घर की बहू बन से रही है, हम भी यही चाहते हैं। इसकी बात सुनकर मैं घबरा सा गया। मैंने इसको समझाया, देखो वह शादी तो करवा देगी, मगर हम गरीब लोग कल को बेटी से घर मिले तो इसका घर बर्बाद हो जाएगा। इसके ससुराल वाले ये बात कहाँ मानेंगे? इनकी बहू का गरीब भाई का इनके बड़े घर
मैं उनसे मिलने आया। मेरी बात पर वो उल्टा मुझे समझाने लगी, हमारे लिए हमारी बेटी अच्छे घर में ब्याह कर जा चुकी रहे, यही काफ़ी है। उसके अच्छे नसीब के लिए हम माँ बाप ये कुर्बानी भी दे देंगे। इसके बाद मैंने कहा ठीक है, फिर देखते हैं, सुबह बात करता हूँ मालकिन से। मैंने अगले दिन ही मालकिन से बात की, मगर वही बात हुई जिसका मुझे डर था। मैंने जब मालकिन को अपनी बेटी को बताया तो बोली, उसे कल मेरे बंगले पर भेज दो, 1 हफ्ते में उसे रुखसत कर दूंगी, लेकिन तुम कभी उसके ससुराल नहीं जाना, वरना तुम्हारी गुर्बत की वजह से बेटी की तलाक हो जाएगी। मैं जिस बात का डर लेकर बैठा था, मेरे साथ भी वही बात हो गई। मानसा जी अच्छा कहकर घर लौटे। अब बीवी से बात की तो वो खुश हो गई कि हमारी बेटी की शादी हो रही है। मैंने उसे समझाया, मगर वो पगली खुशी में मेरी बात नहीं सुन रही थी। अगले दिन अपनी बेटी को बंगले पर ले गया और उसको मालकिन से मिलवाया। मालकिन ने देखते ही कहा, माशाल्लाह बेटी तो बड़ी सोहनी है। तुम्हारी अन की तारीफ पर मेरी बेटी शर्मा गई, जबकि मैं भी मुस्कुराया। जी बस रब जी का करम है, मेरी सारी बेटियां सोहनी हैं बहुत। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने सर हिलाया। ठीक है, 1 हफ्ते में तुम्हारी बेटी की शादी है, ऐसे यहीं छोड़ जाओ। इनकी बात पर मेरी बेटी ने हैरत से मेरी तरफ देखा। हैरत तो मैं भी हो गया, क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया था कि मुलाजिम इनकी बेटी को उन्होंने शादी से पहले बंगले पर रखा हो। शादी से 1 दिन पहले ही बुलाती थी लड़की को, मगर मालकिन हम चाहते हैं हमारी बेटी हमारे अपने घर से रुखसत होकर हो, क्योंकि फिर जाने कब मिलना हो हमारा या नहीं। मैंने कहा दोबारा मिलना तो कभी नहीं होगा तो हम लोगों का। उन्होंने कहा तो मैं चौंक गया। जी क्या मतलब? मैंने बेसाख्ता पूछा था। और नहीं, मैंने कहा तुम कल ही बता दिया, तुम शादी के बाद बेटी से मिलने इसके घर नहीं जाओगे, तो इस बात पर अमल करना और ठीक है, ले जाओ अपने बेटे को अपने घर। उन्होंने कहा तो मैं घबरा गया। जी आप जैसा कहेंगे वही होगा। फिर शादी में कुछ हिचकिचाकर उनसे पूछने लगा, हाँ 1 हफ्ते में हो जाएगी। इनकी बात सुनकर मैं मुतमईन होकर अपनी बेटी को वापस अपने घर लेकर आ गया। मेरी बीवी ने भी अपनी तरफ से शादी की तैयारी शुरू कर दी, जबकि शादी मालकिन ने ही करवानी थी अपने खर्चे से, तो मैं उनका मशकूर था। लड़का भी बहुत अच्छा था और बड़े ऊंचे खानदान के लोग थे। जिस दिन लड़के वाले आए थे बंगले पर, मालकिन ने मेरी बेटी को बुलाया था। मैं उसको वहाँ लेकर गया था, मगर मेरा तारुफ उन्होंने माली के तौर पर करवाया था। दिल में तकलीफ हुई थी, मगर बेटी के अच्छे नसीब के ये हम खामोश थे। मेरी बेटी बड़ी खुश थी। इसको अपने होने वाले ससुराल वाले बहुत पसंद आए थे। फिर शादी 2 दिन बाद तय पई। मालकिन ने बंगले में तैयारी शुरू कर दी थी, मैं भी इसी में मसरूफ हो गया। आखिरकार मेरी बेटी की शादी का दिन आ पहुंचा। मालकिन ने बड़े धूमधाम से मेरी बेटी को रुखसत किया था। अपनी बेटी से मिलते वक्त मेरी बीवी का बहुत बुरा हाल था। दिल तो मेरा भी खून के आंसू रो रहा था, मगर इसको अच्छा घर मिला था, इसी में हम खुश थे। इसकी शादी को 2 ही दिन हुए थे जब मेरी बीवी ने मुझसे बोला, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, इससे मिलने का दिल कर रहा है मेरा। तुम पागल हो गए हो क्या? मालकिन की बात याद नहीं तुम्हें? इस ख्याल को अब सारी जिंदगी के लिए दिल से निकाल दो, वरना हमारी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने सख्ती से इसको समझाया और उस ख्याल को दिल और दिमाग से निकालने का गलती उसकी नहीं थी। दिल मेरा भी तड़प रहा था अपनी बेटी से मिलने के लिए, मगर मालकिन का साथ तो कम था, न मिलने का और समझ आ रहा था। मुझे दूसरों का दुख जो मिला, जमीन तड़पते थे अपनी बेटियों से मिलने के लिए। भला क्या ऐसा भी होता है कि बेटी के घर जाने से इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? क्या अमीर लोग कितने बेहस होते हैं समझते नहीं, हम गरीबों की मजबूरियां या फिर वजह कुछ होती समझ नहीं आ रहा था। बड़ी बेटी से मिलने की तड़प इतनी थी कि अपने घर भी जाने को दिल नहीं करता था, इसलिए देर तक बंगले में काम करता रहता। इस बार मालकिन के बेटे बड़े अरसे से यहाँ रह रहे थे, वरना तो ज़्यादा वक्त नहीं रहते। मैंने ये बात नोट की थी। इस बार इनका क़याम बहुत लंबा हो गया था, मगर कुछ दिन से वो रात को बंगले में मौजूद नहीं होते थे। बस सुबह
आते और शाम होते ही तैयार श्यार होकर बाहर निकल जाते। कुछ अरसा यूं ही गुजर गया। मैं एक दिन पौधों को पानी दे रहा था जब किसी मुलाजिम के चीखने की आवाजें आ रही थी। मैं फेंक कर फौरन भागा। आवाजें बंगले के ऊपर वाले हिस्से से आ रही थी। मालकिन बेदर्दी से एक मुलाजिम को मार रहे थे जो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था उनके सामने, और वहाँ के एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जब मैं इस कमरे की तरफ बढ़ा, जो ही वहाँ देखा, मैंने देखा मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैं धक से रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस दरवाजे को खोलने की? बताओ कैसे की तुमने हिम्मत यहाँ आने की? मालकिन इस मुलाजिम को पीट रही थी। वो मुसलसल गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहा था। उनसे इस चोट पर सारे मुलाजिमीन वहाँ जमा हो गए। सब बेयकीन से इस कमरे में देख रहे थे मेरी तरफ। वो भी खौफी रास में थे। हम में से किसी में हिम्मत नहीं थी मालकिन को रोके। जब मालकिन का बेटा वहाँ आया, उन्होंने इनको काबू कर लिया, उनको वहाँ से ले गए। इस कमरे में मौजूद लाश को देखकर मैं भी वहाँ से हट गया। मैं मालकिन कमरे से गुजर रहा था जब उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं तो जान से मार देती। उससे कैसे हिम्मत की दरवाज़ा खोलने की? इसने मुम्मा आप होश से काम ले। इस तरह करेंगी तो हमारा तमाशा बन जाएगा। क्या सोचेंगे सब? आप सब मुलाजिमीन के सामने इसको इस तरह से मार रही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। अगर हमारी सच्चाई खुल गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। हम फिर कहीं के नहीं रहेंगे। होश से काम लें और कोई झूठ बनाकर इनको बताएं कि इस कमरे में किसकी लाश है। मैं नहीं चाहता कोई हमारा राज जान ले, जिसके लिए इतने पाप और बेलने पड़ रहे हैं, इतने लोगों को मारा है, इतनों को कैद रखा है, सिर्फ एक सच को छुपाने खातिर इतनी मेहनत की। मैं नहीं चाहता ये मेरी मेहनत ज़ाया हो जाए। आप इस मुलाजिम को नहीं मारती, बल्कि वही करती जो हम बाकी सबके साथ करते हैं। अगर कोई हमारी सच्चाई जान लेता है तो हम इसको कैद कर देते हैं और फिर मार देते हैं। किसी को भी मालूम नहीं पड़ता। लेकिन आज आपको ने उसे ने मरवा दिया। मैंने मना भी किया था मुलाजिमीन को इस तरफ ना भेजो। भूत वाला आइडिया कुछ खास नहीं था। इनका बेटा मुसलसल बोतल जा रहा था। मैं सुन दिमाग के साथ सब सुन रहा था। कौन सा राज था जो उन्होंने छुपाया था? लोगों को यहाँ कैद रखने और जान से मार देने की क्या वजह थी? मैं शाल दिमाग से वहाँ खड़ा सोच रहा था जब बाकी मुलाजिम रोते हुए वहाँ से गुजरे। मैंने अफसोस से उनको देखा और फिर उनके साथ ही मिलकर वहाँ से गुजर गया। वो सब वापस में इस कमरे में मौजूद लाश का जिक्र कर रहे थे। वहाँ वो लाश क्यों मौजूद थी? क्यों इस को मारा गया? किस लिए मारा गया? जबकि मैं खामोश था। अगले दिन मालकिन ने हम सब मुलाजिमीन को जमा किया और कहा, जो भी कल हुआ वो इस बंगले से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और हाँ, जो लाश इस कमरे में मौजूद थी वो मेरा ही नया मुलाजिम था। आज ही आया था। मैंने इस पुराने मुलाजिम को कहा था इसको काम समझा दे, मगर मुझे नहीं पता था ये ऐसा करेगा। इसने मुलाजिम को कत्ल इसने किया है। मैंने खुद इसको रंगे हाथों पकड़ा था, तभी इसको मारा। अब इसकी सजा यही है कि इसको कैद रखा जाए। कत्ल कोई आम बात नहीं। कल को वहाँ से भी किसी को कत्ल कर सकता है, इसलिए इसको कैद कर दिया गया है। अब सब जाओ, अपना अपना काम करो। उन्होंने हम सब से कहा, मगर मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है इनकी बात पर, क्योंकि मैं समझ चुका था कि इनका कोई राज है जो एक सच है। मगर उन्होंने अपने कत्ल का इल्ज़ाम इस मासूम मुलाजिम पर लगा दिया था जिसने उनका राज जान लिया था। क्या था वो राज? क्या बात हो सकती? मैंने बहुत कोशिश की जानने की, मगर जान ना सका। इधर मेरे घर में मेरे बीवी बड़ी बेटी की यादों में गमगीन थी। मैंने सोचा क्यों न भेष बदल कर इसको देखा। इसकी खैरियत की खबर फिर अपने बीवी को दूँ। ऐसे भी मेरी बेटी की शादी को 1 साल हो गया था। तो फिर मैं अपनी सोच पर अमल करके फिर मैं बेटी से मिलने चला गया। इसके घर का पता मुझे मालकिन ने पहले दिन ही बता दिए थे, लेकिन यहाँ पहुंचकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मैंने इस जगह देखा। यह तो एक खाली सुनसान मैदान बना हुआ था जहाँ कोई घर तो दूर की बात दीवार भी नहीं थी। मैंने आसपास से पूछा, यहाँ एक घर था क्या? हो किसी ने तुड़वा दिया? मगर सबने कहा, पागल हो तुम, यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है। सड़क है, एक सड़क किनारे
किस का घर होगा भाई। मैंने लुटे हुए उजड़े हाथों से वापस घर आया। बीवी ने पूछा तो मैंने सारा मजरा कैसे या मालकिन के बारे में भी सब बता दिया। तो वो रोने लगी और कहा चलकर मालकिन से पूछते हैं हमारी बेटी के साथ क्या किया है उन्होंने। मुझे भी इसकी बात ठीक लगी क्योंकि वो ही बता सकती थी सब सच। जब हम दोनों मियाँ बीवी मालकिन के यहाँ पहुँचे और जब अपनी बेटी का सवाल किया तो उन्होंने पहले मानने से इनकार कर दिया, मगर आखिरकार बोले अगर जान ही गए हो तो आधा सच तो पूरा सच मैं बता देती हूँ। तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत थी, मुझे तो वो बहुत पसंद आई थी और बात की समझ से मेरे बेटे को भी पसंद आ गई थी, मगर मैंने अपना भरम रखने के लिए तुम्हारी बेटी की शादी तो करवा दी थी, मगर मेरा बेटा इस बात से खुश नहीं था। इसको तुम्हारी बेटी चाहिए थी, फिर क्या किया, घर से इसके नाम निहाज जौहर से इसको खरीद कर मैंने अपने बेटे के हवाले कर दिया। बड़ी इज्जत वाली थी तुम्हारी बेटी, मेरे बेटे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना इसको नसीब नहीं हुआ। तो फिर इनको बात पर हमदम साधे खड़े थे। उन्होंने इससे आगे कहा मियाँ बीवी को लगा बंगले की छत हमारे सर पर आ गिरी हो, हम दोनों जमीन बोस हो गए। मेरी बीवी वहीं ढाए रोने लगी और मैं पत्थर बना बैठा रहा। मेरी आंखें खुश्क थी। जिस बेटी का अच्छे नसीब के लिए हमने मोड़ कर उसका हाल तक न जाना वो हमारी बेटी से आगे सोच कर ही रूह काम की थी। अगले बार उन्होंने ये कही थी तो बस चल पड़ी ऊपर। अब तो 1 साल हो गया है इसको मरे हुए, ऐसा क्यों किया आपने मालकिन, क्यों मेरी बेटी का कातिल हैं आप लोग। मैं उसे और मियाँ किस्मत अच्छी थी तुम्हारी बेटी के केस पर मेरे कातिल आया था, वरना तो हम लड़कियों को कोठों पर बेच देते हैं। ये हमारा जिंदा है बस शादी तो एक बहाना है, हम इन झूठ मूठ का नाटक करते हैं। शादी कर मैं इनको बेच कर इनकी कीमत वसूलते हैं। हम तुम्हारी बेटी की भी वसूली थी कीमत, मगर वो कम बात बड़ी खूबसूरत थी, अपने बेटे के लिए डबल कीमत देकर इसको वापस खरीदा था। उससे जिससे इसका निकाह करवाया था असल में तो वो खुद कोठे का मालिक था। इससे अपने धंधे को चलाने के लिए हजारों लड़कियों से निकाह कर चुका था धोखे से। उनकी बात पर हम लोग खुद को कोस रहे थे। कैसी बेटी के अच्छे नसीब की लालच में इसको जिल्लत में फेंक दिया था हमने। मम्मा आप क्यों ये बातें इनको बता रही हैं, बंद करें इनको भी कैद में। जो हम हमेशा करते हैं वही करें इनके साथ। याद है इस मुलाजमा की बेटी की भी 1 साल पहले शादी करवाई थी। कितना मना गया था इसको के ना मिलने जे अपनी बेटी से, मगर वह इस जगह चली गई। फिर क्या इसको बेटी नहीं मिली, वह इस तरह से हमसे सवाल करने आई थी। फिर आपने उसको सच बता दिया और हमने इसके बाद इसको कैद कर दिया यहाँ कभी फिर वो यहाँ से ना निकल सकी थी और तरफ कर जान दे दी थी उसने। इनके बेटे ने आकर कहा तो हम दोनों मियाँ खौफ ज़दा हो गए, हमारे बाद हमारे बच्चे क्या होगा। बस यही सोचकर मैंने अपने बीवी को उठाया, तरी से इसके साथ इस कमरे से बाहर निकल गया। बचाओ बचाओ मैं जानबूझकर चिल्लाया ताकि सब मुलाजमीन वहाँ इकट्ठा हो जाएं और हम महफूज हो जाएं। और ऐसा ही हुआ था। सब मुलाजमीन के जमा हो जाने पर मैंने चीख कर सबको सच उनको बता दिया। उनसे भी कहा कि इनकी बेटियों के साथ भी यही हाल किया है। उन्होंने तो सब मुलाजमीन गम और गुस्से से फूल गए और आहिस्ता आहिस्ता बात गाँव में फैल गई और इनके बंगले के ऊपर वाले हिस्से से बहुत सारे कैदी निकले और कुछ लाशें थी कैदियों की। इन कैदियों ने मेरी बात की तस्दीक कर दी थी और फिर गाँव ने इस मामले को पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिया। अब जो फैसला होना था उनका रब जाने। हमने भी अपना फैसला उस पर छोड़ दिया था, जबकि हम दोनों मियाँ बीवी पछतावे में जिंदगी जीने लगे थे।